students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter first, bones and muscles. In this chapter, we shall learn about the bones and muscles. How many bones and how many muscles are there in our body, and what are their functions and what are their types, we'll discuss in our chapter. Now students, let's look at chapter. Chapter first, bones and muscles. Get a start, look at the pictures given below and fill the missing letters in the blanks provided. Now students, your first image shown here is a backbone. Cut. First image shown here is a backbone. Backbone. Next is skull, skull. Next is ribcage, ribcage. नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट है बच्चों, ये आपको जो शोल्डर्स में होता है, तो यहाँ पे ई की जगह एन आएगा, GLIDING, ग्लाइडिंग जॉइंट. नाउ स्टूडेंट, लेट स्टार्ट आवर चैप्टर. Think of the things a computer can do. Now think of all the things you can do. Is it not your list much longer? Our body is more efficient than any man-made machine. Now think of all the functions that your body performs, and so many of them at the same time. बच्चों, आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो कंप्यूटर कर सकता है. अब उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप कर सकते हैं. बच्चों, आपकी लिस्ट जो है इतनी बड़ी नहीं होगी. हमारी बॉडी जो है एक मैनमेड मशीन है जो एक एफिशिएंट वर्क को ही कर सकती है. बच्चों, जो सारे फंक्शंस जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है एक समय में, बच्चों वो क्या होते हैं, हमारे सारे एक्टिविटीज जो हमारी हेल्पफुल होती हैं. Now student, let's see the amazing fact. The study of bone is called the osteology. Bones make up 14% of our total body weight. बच्चों, जो हमारे बोन्स की स्टडी होती है उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं. हमारे बोन्स जो है हमारे टोटल बॉडी वेट के 14% कंप्राइज करते हैं. नाउ बोन्स आर दी हार्ड एंड लिविंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी which grow and change all the time like other parts of the body. They are composed of calcium, phosphorus, and a fibrous substance known as collagen. Bones are strong but light in weight. As they are hollow from inside, they are made up of two types of bone tissues. बोन्स जो बच्चों हार्ड होती हैं, मजबूत होती हैं, ये हमारी बॉडी के लिविंग पार्ट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं और चेंज होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जिससे हमारे और अदर पार्ट्स भी होते हैं. बच्चों, हमारी बोन्स कैल्शियम, फॉस्फोरस और फाइब्रस सब्सटेंस यानी कोलेजन से मिलकर बनी है. बोन्स हमारी मजबूत होती हैं, लाइट वेट होती हैं, हॉलो यानी अंदर से खोखली होती हैं. हमारे टू टाइप्स के बोन्स टिश्यूज होते हैं. नाउ लेट्स सी द डायग्राम. फर्स्ट, कॉम्पैक्ट बोन, cancellous bone, bone marrow. This is the structure of a bone. Now first is compact bone. It is the solid hard outside part of the bone. It looks like ivory and is extremely strong. Holes and channels run through it carrying blood vessels and nerves. बच्चों, कॉम्पैक्ट बोन आपकी सॉलिड मजबूत होती है, हार्ड होती है. बच्चों, ये आइवरी जैसी दिखाई देती है, बहुत मजबूत होती है, जिसके अंदर होल्स होते हैं, चैनल्स जो होते हैं जिसके अंदर से ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं. Now next is cancellous bone. It is inside the compact bone and looks like a sponge. It is made up of a mesh-like network of tiny pieces of bone called trabecula. This is where bone marrow is found. बच्चों, कैंसलस बोन हमारे कॉम्पैक्ट बोन के अंदर होती है, ये स्पॉन्जी होती है, ये मैश लाइक नेटवर्क से बनी हुई होती है. उसके मैश लाइक नेटवर्क को हम ट्रैबिक्यूले कहते हैं, जो हमारे बोन मैरो जहाँ पे फाउंड किया जाता है. Now student, let's see amazing fact. Bone marrow is the flexible tissue in the interior of bones. In humans, blood cells are produced by bone marrow. Now next is the skeleton. The framework of bones in our body is called the skeleton. Its functions are, बच्चों जो हमारे बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, हड्डियों का ढांचा, उसी को हम स्केलेटन कहते हैं. फर्स्ट, टू गिव फॉर्म, शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. स्केलेटन का काम होता है हमारी बॉडी को शेप देना, फॉर्म देना और सपोर्ट प्रोवाइड करना. टू प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन, हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा. यह हमारे इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, जस्ट लाइक ब्रेन, हार्ट और लंग्स को. A baby is born with 300 bones, but with age, some of these bones fuse together and grow in size. Thus, an adult is left with only 206 bones. जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं. एज के अकॉर्डिंग उसकी बोन्स जो होती हैं आपस में फ्यूज होने स्टार्ट होती हैं और वो साइज में ग्रो करता है, तब उसकी 206 बोन्स बचती हैं.
Now, student, let's see amazing fact. Some organs such as the nose and ears have cartilage and no bones. बच्चों हमारे हर एक ऑर्गन में बोन नहीं होती. नोज और ईयर्स में कार्टिलेज होता है. Parts of the skeleton. The human skeleton consists of 4 parts: skull, spine, rib cage, and lungs. Now start with the skull. The skull protects the brain and the sense organ. It consists of a total of 22 bones. The bones in the skull are interlocked and they cannot move except for the lower jaw. The movement of the lower jawbone enable us to eat, talk, sing और smile. जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ब्रेन हमारा सेंस ऑर्गन होता है जिसमें 22 बोन्स होती हैं. बोन्स जो होती हैं स्कल की भी इंटरलॉक्ड होती हैं, जो मूव नहीं कर पाती हमारे लोअर जॉ को छोड़ के. जो नीचे वाला जॉ होता है वो मूव कर पाता है, जिसके थ्रू आप बोल पाते हो, सिंग कर पाते हो या खाना खा पाते हो. 8 large and flat bones of the skull are joined to form the brain box. The upper portion of the skull which encloses the delicate brain inside it. The remaining 14 bones form the face. जो हमारी 8 large flat bones होती हैं वो स्कल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और 14 bones जो होती हैं हमारी फेस की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट आता है स्पाइन. The spine or backbone is also known as the vertebral column. It consists of 33 irregularly shaped bones called the vertebrae. स्पाइन या बैकबोन बच्चों उसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. इसमें 33 इरेगुलरली शेप बोन्स होती हैं जिसे हम वर्टिब्रे कहते हैं. These bones make a strong framework which protect the spinal cord. आपको पता है जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो किसके थ्रू प्रोटेक्ट रहता है? आपके बैकबोन के थ्रू. The vertebral column enable us to stand upright and maintain our balance. वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू आप सीधा खड़े हो पाते हो, आप बैलेंस कर पाते हो. Next is rib cage. 12 pairs of thin and curved bones are called the ribs. These bones form a rib cage which protect the heart and the lungs. 12 पेयर्स होते हैं हमारे कर्व्ड बोन्स की जिसे हम रिब्स कहते हैं, जो रिब केज का फॉर्मेशन करती हैं और हमारे इंटरनल हार्ट और लंग्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं. All the 12 pairs of the ribs are attached to the backbone at the back and the first 10 pairs are attached to the chest bone in the front. बच्चों 12 पेयर्स जो होते हैं हमारे बैक की साइड बैकबोन से अटैच रहते हैं. 10 पेयर्स जो होते हैं शुरू के वो चेस्ट बोन से अटैच रहते हैं फ्रंट में. इट इज ऑल्सो नोन एज दी स्टर्नम. जो फ्रंट के होते हैं अटैच उसे हम स्टर्नम कहते हैं. द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स विच आर नॉट अटैच टू द चेस्ट बोन बट ओनली टू द बैकबोन आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. जो आपके चेस्ट बोन से अटैच नहीं रहते वो से हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. Now let's see amazing fact. Sometimes people are born with an extra pair of ribs called the gorilla ribs. बच्चों कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रिब्स के साथ बॉर्न होते हैं, उन्हें उन रिब्स को हम गोरिल्ला रिब्स कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लिम्स. लिम्स क्या होते हैं? आवर बॉडी हैज 2 पेयर ऑफ लिम्स, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स. हमारी बॉडी में 2 पेयर्स के लिम्स होते हैं, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स. 4 limbs are our arms. The arm is made up of 2 parts, upper arm and the lower arm. They are joined at the elbow. The upper arm has 1 leg bone. The lower arm has 2 bones. The upper arm is joined to the spine by the shoulder girdle. The hand has many small bones. 4 limbs बच्चों हमारी आर्म्स में होती हैं. आर्म्स जो होते हैं हमारे 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, अपर आर्म एंड दी लोअर आर्म, जो हमारी जो एल्बो के थ्रू जॉइन रहते हैं. अपर आर्म में एक बड़ी लेग बोन होती है, लोअर आर्म में बच्चों हमारी लॉन्ग बोन होती है एक बड़ी, और हम लोअर आर्म में हमारी 2 बोन्स होती हैं. अपर आर्म की जो बोन होती है वो हमारे शोल्डर तक अटैच रहती है, और जो हमारी लोअर आर्म होती है हैंड्स में स्मॉल बोन्स होती हैं. Hind limbs are our legs. The leg is also made up of 2 parts, the upper leg and the lower leg. They are joined together at the knee. The upper leg has the longest bone in our body, called the femur. The lower leg has 2 leg bones. The lower part of the spine is joined to the femur by the hip girdle. The foot has many small bones. हिंड लिम्स बच्चों हम लेग्स यानी पैरों को कहते हैं. लेग्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, अपर लेग एंड लोअर लेग. ये दोनों बच्चों नी यानी घुटने के थ्रू जुड़े रहते हैं. अपर लेग को बच्चों लॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है पूरी बॉडी की, जिसे हम फ्यूमर कहते हैं. लोअर लेग के 2 बोन्स होते हैं. जो लोअर पार्ट होता है स्पाइन का वो जॉइन रहता है हमारे फ्यूमर से और हिप ग्रिडल के थ्रू. जो फुट होती है, तलवा होता है पैर का, उसमें बहुत सारे स्मॉल बोन्स होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स बिकम पहचान, राइट ट्रू और फॉल्स. The skull covers and protects the brain. Yes, it is true. The backbone is made up of 33 small bones. Yes, it is true. The long flat bone present at the sternum of the chest is called the sternum. ये तो गलत है, false. Humerus नहीं, sternum कहते हैं उसे. The longest bone in the body is called the femur कहते हैं, ये तो rib cage लिखा है, false.
Now next is joint. Joint are the places where two or more bones fit together. Bones are held together by strong bands of fiber-like structure called ligament. They control the amount of movement of bones. There are two types of joint present in our skeleton, movable and immovable. Let us read about these joints in detail. Joints वो places होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा bones को एक साथ fit करते हैं. Bones जो होती है strong bands, fiber-like structure यानी ligament के through join रहती हैं. बच्चों बोन्स जो होती है मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती हैं. जॉइंट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, मूवेबल और दूसरे होते हैं इमूवेबल. नाउ अब हम उसके बारे में डिटेल में समझते हैं. इमूवेबल जॉइंट्स. The immovable joints do not allow the movement of bones. The joints of the skull, the joints between the rib cage and the breastbone, etc. are the immovable joints. जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो बोन्स के मूवमेंट में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते. जैसे स्कल जॉइंट जो रिबकेज का होता है या ब्रेस्ट बोन का वो इमूवेबल होता है. नेक्स्ट इज मूवेबल. द मूवेबल जॉइंट प्रोवाइड फ्री मूवमेंट टू द बॉडी एज द कंटेनर ल्यूब्रिकेटिंग लिक्विड. जो मूवेबल जॉइंट होता है जो बॉडी को फ्री मूवमेंट देता है उसके अंदर ल्यूब्रिकेटिंग लिक्विड होता है. आर बॉडी हैज 4 काइंड ऑफ मूवेबल जॉइंट. हमारी बॉडी में 4 तरीके के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड इज हिंज जॉइंट, थर्ड इज पाइवोट जॉइंट, fourth is gliding joint. Now students, what is ball and socket joint? In this type of joint, one end of the bone is round like a ball. It fits into the hollow part socket of the other bone. For example, round end of the humerus fit into the cup-like socket of the shoulder bone. Also, the thigh bone femur fit into the socket of the hip bone. The ball and socket joint allow movement in all direction. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में इसमें एक बोन का एंड जो होता है बॉल की तरह होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो हॉलो पार्ट होता है जिसे हम सॉकेट कहते हैं जिसमें एक बोन अटैच होता है. जो राउंड एंड होता है ह्यूमरस का वो किसमें फिट किया जाता है, शोल्डर बोन में. जो थाई बोन यानी फ्यूमर होता है वो फिट किया जाता है हिप बोन में. जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है वो सारी ही डायरेक्शंस में आपके मूवमेंट करने में हेल्प करता है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अमेजिंग फैक्ट. आर्थरीट्स इज अ डिजीज ऑफ द जॉइंट. इट कॉजेज पेन इन द जॉइंट. जो आर्थरीट्स हो जाता है मतलब कि घुटनों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन होने लगता है. नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट. A hinge joint allow movement only in back and forth direction. It acts just like a hinge of a dog. The hinge joint are found in elbow, knees, toes and fingers. Hinge joint सिर्फ आगे और पीछे करने में मदद करता है. जैसे डोर्स के दरवाजे को आप क्या कर सकते हैं, पुश या पुल कर सकते हो और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते. एल्बो, नी, टो, फिंगर्स. Now next है आपका pivot joint. Pivot joint is where the skull meet the top vertebrae. It allow us to bend our head up, down and sideways. पाइवोट जॉइंट आपके हेड में होता है जिसकी वजह से आप सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हो. नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. अ ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन अ ग्लाइडिंग मोशन. इट इज फाउंड इन द रिस्ट, एंकल एंड द वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन. ग्लाइडिंग जॉइंट क्या करता है, बोन्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में हेल्प करता है. रिस्ट में, एंकल्स में, स्पाइन के वर्टिब्रे में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है. नेक्स्ट इज मसल्स. The muscles in the body tighten and produce movement. Bones in the body cannot move on their own. They are attached with muscles which help them to bring out all movements of the body. The muscles are joined to bones by strong, tough and thick fibers called tendons. Muscles बच्चों बॉडी को टाइट करने में, उसको मूवमेंट देने में हेल्प करती हैं. जो बोन्स होती हैं वो अपने आप मूव नहीं कर सकती. जब बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच की जाती हैं तभी आपके मूवमेंट कर पाता है कोई भी बॉडी पार्ट. मसल्स जब बोन्स के थ्रू अटैच रहती हैं एक थिक फाइबर, उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन. There are about 650 muscles in our body. Muscles help us to bend our arms and knees, push food into the digestive canal, chew our food and make our heart beat. बच्चों जो हमारी बॉडी में 650 मसल्स होती है, मसल्स के थ्रू आप आर्म्स को, नीज को बेंड कर पाते हो, डाइजेस्टिव कैनाल में फूड को पुश कर पाते हो, फूड को च्यू कर पाते हो और हार्ट बीट होती हैं. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मसल्स. मसल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स: वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. नाउ voluntary muscles. The skeletal muscles lie between the skin and the bones. The skeletal muscles have voluntary movement. That is, skeletal muscles can move at our will. So these are called voluntary muscles. Our arms, legs, neck, shoulders, etc. have voluntary muscles. जो स्केलेटल मसल्स हमारे स्किन और बोन्स के बीच में होती हैं उन्हें हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं. जो हम अपने विल से हम उन्हें मूव करवाते हैं, आर्म्स को, लेग्स को और नेक को. Next is involuntary muscles. Muscles of some body organs such as walls of stomach and intestine are smooth. These muscles work on their own, so these are called involuntary muscles.
जो मसल्स खुद से मूव करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जैसे कि आपके स्टमक के वॉल की मसल्स हो गई है, इंटेस्टाइन की मसल्स। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स। मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। They work continuously without stopping and without getting tired. The contraction and expansion of cardiac muscles count as one heartbeat. These muscles work throughout our lifetime. They do not stop even for a movement. जो हार्ट की मसल्स होती हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। वो कंटिन्यूअसली बिना रुके काम करती रहती है, बिना थके। जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है कार्डियक मसल्स का, उससे ही आपकी एक हार्ट बीट काउंट की जाती है। ये मसल्स आपकी पूरी लाइफ टाइम काम करती रहती हैं, 1 मिनट के लिए भी नहीं स्टॉप होती। नाउ लेट्स डू फन एक्टिविटी। Let us find joints in our body. Bend your different body parts such as head, hands and legs in different directions. आपको जॉइंट्स को फील करना है, किसे बैंड करके अपनी बॉडी पार्ट्स को, जैसे हेड को बैंड कीजिए, हैंड्स को मूव कीजिए और लेग्स को बैंड कीजिए। ऑब्जर्व देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व, कौन से टाइप्स ऑफ जॉइंट उसमें इन्वॉल्व हैं वो बताइए। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, अपने ऑब्जर्वेशन को पेपर पे नोट कीजिए। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट के ऑब्जर्वेशन से अपनी ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कीजिए। ये आपकी फन एक्टिविटी आपको करनी है। Now, how do muscles work? Muscles work by pulling a bone. When muscles contract, they come close to each other and become shorter and thicker. When muscles relax, they go far from each other and become longer and thinner. मसल्स बच्चों, जब भी हम क्या करते हैं, बोन को पुल करते हैं, तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं, छोटी हो जाती है और मोटी हो जाती है, थिक हो जाती हैं। जब हमारी मसल्स एक्सपेंड करती हैं तो वो लॉन्ग हो जाती है, लंबी हो जाती है और थिन पतली हो जाती हैं। For example, our arm movements are controlled by the two muscles biceps and triceps. हमारे आर्म मूवमेंट बच्चों 2 मसल्स की वजह से होता है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की वजह से। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। मसल्स प्ले आर 4 इंपॉर्टेंट रोल्स इन द बॉडी। दीज आर, मसल्स बच्चों 4 इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले करते हैं। फर्स्ट, स्टेबलाइजिंग जॉइंट। मसल्स होल्ड आवर जॉइंट्स फर्मली एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग डैमेज व्हाइल मूविंग। मसल्स हमारे जॉइंट्स को फर्मली होल्ड करके रखते हैं और हमारे जॉइंट्स को डैमेज होने से बचाते हैं मूव करते हुए। नेक्स्ट इज कॉजिंग मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर अ रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दे पुल द बोन्स टू कॉज मूवमेंट। बच्चों, ह्यूमन बॉडी मूव कर पा रही है मसल की वजह से। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बोन्स पुल होती है, तभी मूवमेंट होता है। नेक्स्ट इज जनरेटिंग हीट। मसल्स प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, हेल्पिंग टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। मसल्स बच्चों हीट प्रोड्यूस करती हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान और हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। Maintaining posture. Muscles work continuously to keep the body in an upright position and maintain posture even when at rest. मसल्स जो होती है कंटिन्यूसली काम करती रहती है हमारी बॉडी को अपराइट पोजीशन में रखने के लिए, पोस्चर मेंटेन करने के लिए, जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं तब भी। नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी न्यू वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज स्केलेटन। इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव अ डिस्टिंक्ट शेप टू दी बॉडी। ये हमारा इंटरनल फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, जो हमारी बॉडी को शेप देता है। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम अदर सिमिलर टाइप, अलग अलग नेचर का होना। नाउ बोन मैरो सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल होता है इनसाइड दी बोन्स। स्कल मीन्स बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट दी ब्रेन, एक स्ट्रक्चर जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फ्लोटिंग रिब्स, अ पेयर ऑफ रिब्स दैट आर नॉट अटैच टू द ब्रेस्ट बोन, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होते। जॉइंट, पॉइंट्स वेयर टू और बोन्स मीट, जो हमारे 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां जहां पे जुड़ती हैं उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। इमूवेबल, नॉट एबल टू मूव, जो मूव नहीं कर सकता। नाउ स्टूडेंट, लेट्स लुक इन अ नटशेल। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। जो हमारा बोन्स का फ्रेमवर्क होता है उसे हम स्केलेटन कहते हैं। आवर बॉडी हैज 2 पेयर ऑफ लिम्स, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स। हमारी बॉडी में 2 पेयर के लिम्स होते हैं, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स। जॉइंट्स आर दी प्लेसेस वेयर 2 और मोर बोन्स फिट टुगेदर। जॉइंट्स बच्चों हमारी वो प्लेस होते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बोन्स को फिट किया जाता है। द हिंज जॉइंट एक्ट्स जस्ट लाइक द हिंज ऑफ अ डोर। हिंज जॉइंट बच्चों हिंज ऑफ अ डोर की तरह काम करता है, जो बैक एंड फोर्थ काम करता है। देर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 650 मसल्स होती हैं। मसल्स वर्क बाय पुलिंग अ बोन। मसल्स कब वर्क करती है, जब आप बोन्स को पुल करते हो। नाउ स्टूडेंट, लेट्स डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, take write the correct option. Muscles are attached to the bones by a strong fibers called tendon is the right answer. Dash protect the heart. Rib cage B is the right answer. The number of bones skull consists of 22 is the right answer. The spine consists of a series of 32 small ring-like bones called vertebrae. B is the right answer. Next है आपका this joint allow only back and forth movement. उसे हम कौन सा joint कहते हैं, hinge joint. C is the right answer. Now student, let's do exercise B. Answer in one word or phrase.
Now, students, let's do first. Holes and channels run through it, carrying blood vessels and nerves, compact bone. This is where bone marrow is found, vertebral column. It allows us to bend our head up, down, and sideways, pivot joint. The longest bone in our body, femur. Strong bands of fiber-like structure by which bones are held together, ligaments. Now, student, let's do exercise C. Fill in the blanks. 8 large and flat bones of the skull are joined to form the. Now, student, first है आपका 8 large and flat bones of the skull are joined to form the cranium. There are 12 pairs of ribs in our rib cage, a long breastbone called sternum holds 10 pair of the ribs in their place in the front. Dash is the bony structure that protects the brain damage. Skull protect the brain damage. Dash are pair of ribs that are not attached to the breastbone, floating ribs. Now, student, let's do exercise D. Match the columns. Vertebral column, बच्चों बैकबोन फर्स्ट को मैच करेंगे ई से. वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है हमारी स्केलेटल मसल्स. सेकंड को मैच करेंगे ए से. इनवॉलेंट्री मसल्स बच्चों हमारी कौन सी होती हैं स्मूथ मसल्स. थर्ड को मैच करेंगे डी से. मसल्स ऑफ हर्ट को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं. फोर्थ को मैच करेंगे बी से. बोन्स के फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं. मैच करेंगे सी से. नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ. I hope you all students have understood this chapter. Now have a nice day. Thank you.